Yes, good morning all of you. Good morning, sir. Okay, so we were doing the second chapter of your new revised syllabus, planning and development. So some of the important part we have completed yesterday, that is related to the first year and second 5-year plan. I'm saying first year. First and second 5-year plan we have completed, and we have seen the difference between those two. If there is a question relating to only first 5-year plan and second 5-year plan, so you will be able to differentiate and you will be able to tell what were the basic ideas and policies of the government relating to these two different 5-year plans. And if we take the revision or the topics which we are going to today are the key controversies in relating to the concept of planning and development. Whenever we talk of planning and development, there was always some controversy. As we have started with the chapter with the topic that was political contestation. It means we said where जब भी हम पॉलिटिक्स में बात करेंगे जिसकी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की देयर आर गोइंग टू बी आर्गुमेंट्स एंड डिबेट there because the meaning of development is different for the different sections of the society. और debate और discussions हमेशा होंगे whenever we will talk of planning and development. So all this we had seen in the first part. We had studied and understood the meaning of political contestation with the help of the example of Odisha, so that example was given so that you can relate that how a developmental thing which government is trying to do or implementing some policies, how it becomes a political issue. ठीक है, different sections of the society में कैसे development का meaning changes. Then we talk of the ideas of development. Under this ideas of development, what did we understand? We studied the ideologies of Western world, and we saw the ideologies of the USSR, that is the Eastern Alliance, and also we talked that what kind of ideology should be implemented to the Indian society which suits our society. Directly we cannot implement the capitalist or the socialist model to the Indian society, but we will have to make certain modifications. So we talk of ideas of development. What are the ideas around the world going in relation to the development? Still we had not planned our development. We were just discussing various models of the development going around in the world. Planning and commission. Then we understood what do we understand by planning and why it is very important. Then government had formed and established a centralized agency whose name was Planning Commission, and the responsibility and the objective of Planning Commission was to set 5-year plans and accordingly move ahead. So जिसमें हमारा expenditure और income सब देखा जाता है. तो first 5-year plan we had studied, second 5-year plan. But after going through with these two plans, we had seen इसमें क्या था and इसमें क्या था. So after this the question arises, there were some controversies. As I told you in the beginning of the chapter also, whenever we will talk of planning and development, there will be debates, arguments and disputes relating to the matter of development. So we were talking about development at the agriculture sector, development at the industrial sector. So we have seen कैसे move कर रहे थे, क्या चीजें थी. But these two things again, after जब ये चल रहा था plan, there were certain controversies relating to these 5-year plans. अब इसको क्या करने लगे? Some were the supporters of agriculture sector, some people in India were the supporters of industrialization. तो उनके बीच में क्या होने लगा? Disputes and discussion. So the next topic which we are studying today is key controversies. I hope everyone knows the meaning of controversies. So in relation to development and basically 5-year plan के बीच में क्या controversies थी. So there are two controversies. If question direct आ जाता है, that what are the key controversies in relation to the planning and development after 5-year plans were already stalled. So we will talk about two type of controversies were there. So first we will understand what were the two sides of the people, or the two type of people. One was supporting agriculture and another was supporting industry. So they had their own means to prove that agriculture was much better, and same with the industrial sector also. So हम इनको support करेंगे. Some will be supporter, कुछ statements इनकी पढ़ेंगे, कुछ statements industry के favor में पढ़ेंगे. तो हमें इनका पता चल जाएगा difference. Then we will study about public versus private. Public means all the production which are being controlled by the government. Public means people, and people's के behalf में कौन react करता है? हमारे representative. So automatically who will be taking part in this public sector? Government. And this is private. ठीक है? Private ownership जो होता है. So today we will be discussing these 2 points. So and before that I told you yesterday we were talking about the decentralization planning. This concept we were studying. So decentralization is the concept we have already discussed in class 11th also, when we were studying local government. We were studying local government. What happened in 1992? Anyone? Not relating to this class 12 syllabus,
but in relation to class 11th local government 1992 में क्या हुआ था? There were two amendments. Which amendments? 73 and 74. 73 and 74 amendments were there. This was related to which? Rural areas, and other was urban areas. So we will see, जब हमारा प्लानिंग चल रहा था, somehow ये भी टॉपिक इससे कनेक्टेड है. In 1992 हमने क्या किया? Decentralization planning, where we thought that it is not compulsory कि if we are talking about the 5-year plans or centralization or development, that it is the responsibility of only central government से कि development plans कैसे होंगे, किस किस एरियाज में क्या डेवलपमेंट करना है. But it is also the responsibility of the state government and further the local governments to make certain plans and achieve some targets of development in their local regions. It is not possible for central government कि वो इस एरिया में चोली करके देखे कि what are the things which are required. Which person is the best person who can do the development here? The local leaders here. Okay. Yes, move fast. Yes, move fast. Yes. चलो, come on. Okay, so I told you, so the best development which is possible at local level. Wait, don't sit together. Okay, so in class 11 you had seen this. After amendment of 1992, there was the decentralization of the powers between central government, state government, and some subjects or some functions were allotted to the local government, because it was supposed that best authority which can do development at the local level is this local government itself. So it needs to be empowered. तो उसको हमने क्या दी? Powers दी किससे दी? Amendment of Constitutional Amendment of 1992. इससे कुछ subjects जो पहले state के अंदर हुआ करते थे वो किसके पास चले गए? Rural and urban local governments की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Of local government. So same we are trying to understand here also in this concept that why we were all dependent on the central government. The central government will make 5-year plans, planning commission which was a central authority, it will only implement all the plans, then only development is possible in India. Why don't we take initiatives at our own level? जब हमने ये structure बना रखा है, our country is a federal country. Federal country means we have structure at the top is central government, at the second level is state government. So previously the powers were divided between or the decentralized between these two powers only, but later on local governments were also given recognition by the constitution. Recognition word use करेंगे क्योंकि constitutional amendment हुआ था where जो subjects पहले state government के अंदर हुआ करते थे those were given to the local government. Why this was done? This was done because of this thing only which we are studying, decentralization planning, because it was required कि हमको इसके ऊपर ही dependent नहीं रहना है. At our own level जरूरी नहीं हम mega डैम्स की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें. एट आवर ओन लेवल वी कैन टॉक ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ ऑफ आवर ओन रीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट आवर ओन लोकल लेवल. अगर लोकल लेवल से डेवलपमेंट शुरू होगा तो इजीली आवर कंट्री विल बी एबल टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड इन दीस प्लान्स. इसमें बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है बट पॉसिबल नहीं है उसको अचीव करना इजीली, क्योंकि सारा किसके हाथ पे छोड़ दिया हमने? सेंट्रल गवर्नमेंट. बट इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करें, इनिशिएटिव्स ले, प्लस लोकल गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले, प्लस उनको सपोर्ट भी मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट. तो ये जो टारगेट्स थे हमारे 5 ईयर के एज अ होल, उसको हम अचीव करने में हमें थोड़ा बेनिफिट होगा. दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दिस टॉपिक हियर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, अभी तो मैंने आपको रफली बताया, विल टेक द एग्जांपल ऑफ व्हिच स्टेट हियर? Kerala. That Kerala on its own level, how it managed to decentralize the powers. So we'll discuss that. Okay, so we are reading this important box. A question can come from where? What decentralization is important topic here when we talk of the development programs. Okay, so it is not necessary that all planning always has to be centralized. Same thing, it is not important कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे development और planning की, तो बस हम central government के ऊपर dependent रहते हैं. Okay, nor it is that planning is only about big industries and large projects. और planning का मतलब ये भी नहीं है, development का मतलब यही नहीं है कि हमें large projects या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज की ही बात करें. एट द लोएस्ट लेवल ऑल्सो हमने लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको भी अगर हम अवेलेबल कर पाए लोगों के लिए, दैट इज ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. अगर ये रूरल एरिया है और यहाँ की कुछ लीडिंग है, लोकल गवर्नमेंट है, और वो लोगों को बेसिक फूड ग्रेन्स, एम्प्लॉयमेंट, उनकी हेल्थ, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन, ये सारी बेसिक सी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल करा पा रहे, दैट कैन बी अ वेरी गुड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. बिकॉज अगर हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हिच वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज
which our country was facing. उसका मतलब सब माइंड में सबके क्या था कि बड़े बड़े हमें किसको फॉलो करना है, वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करना है, हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी है, बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री. बट ऐसा नहीं था. इंडिया की सोसाइटी की कंडीशन बहुत अलग थी. इफ यू कंपेयर इट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर फेसिंग लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. हमारी मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी साइकिल वहीं पे थे. जो पॉवर्टी मतलब एक गरीब फैमिली में जो पैदा हो रहा है उसकी जनरेशंस उसी लेवल पर रह रही है. क्यों? बिकॉज उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. अगर इस लेवल पे पॉवर्टी थी, ये साइकिल थी पॉवर्टी की, उसके फादर जो काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में थे, वो भी एज अ लेबर वही कर रहा था, तो उसकी फैमिली उसी लेवल तक सिमट के रह जाती. बट लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यहाँ पे तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था तो रीच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, रूरल अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया. बट अगर लोकल गवर्नमेंट्स का भी वहाँ पे इनिशिएटिव होता या स्टेट गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव होता, तो यहाँ पे हम कैसी पॉलिसीज ला सकते थे, क्या ला सकते थे यहाँ पर? इस चेन को तोड़ने के लिए हम क्या ला सकते थे? सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर हम एजुकेट करेंगे इस पॉपुलेशन को, उसके बाद गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, वो अपने आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस चेन से ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, एक एम्प्लॉयमेंट लेगा अच्छी जगह. जब वो एम्प्लॉयमेंट लेगा उसका फैमिली का स्टेटस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. तो एजुकेशन और हेल्थ, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम एजुकेशन भी दे पाएंगे. तो दो सेक्टर पे अगर यहाँ पे वर्क किया जाएगा, हेल्थ और एजुकेशन, तो ऑटोमेटिकली जो रूरल एरिया की साइकिल चल रही थी पॉवर्टी की, उससे बाहर आएगा. हम विलेजेस में देखते हैं ना, किसी की फैमिली में कोई लड़का अच्छा कर जाता है लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड स्टेटस है इंक्रीज हो जाता है, लाइफस्टाइल उनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है. उसके फादर में भी लेबर रहे हो, मे भी फार्मर रहे हो, बट बेटे ने बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया विद हिज हार्ड वर्क. उसको उसके फादर ने एजुकेशन दी, प्लस गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उनका उससे बेनिफिट मिला और उसने अचीव कर लिया, तो वो इससे अपनी फैमिली को बाहर निकाल लेगा. तो ठीक है, तो ये लोकल लेवल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं. द केरला मॉडल, तो केरला मॉडल का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे. केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला. तो केरला का एग्जांपल लेते हैं जब भी हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की. उन्होंने अपने लेवल पे छोटी छोटी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करके उनका लाइफस्टाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट किया है. ऐसा नहीं हो कि वो लोग बहुत रिच हो गए, बट उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट. Kerala model is the name given to the path of planning and development charted by the state of Kerala. There has been a focus in this model on education. उन्होंने अपने मॉडल में केरला ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ सेक्टर्स पे अपना फोकस रखा, एंड दोस एलिमेंट्स वर द मोस्ट नेसेसिटीज ऑफ द पीपल, जैसे कि इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन. पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, फूड ग्रेन्स को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लैंड, जमींदार से बड़े बड़े उन पे क्या कुछ लॉज बना दिए. लैंड सीलिंग्स क्या होती है, एक लॉ बन जाता है कि हाउ मच लैंड अ पर्सन कैन हैव, उसके नाम पे कितनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी हो सकती है उतनी उसको दे दी, उसके अलावा जितना उसके एक्स्ट्रा था उसको उससे ले लिया, और दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द लैंडलेस लेबर्स. तो इसको लैंड सीलिंग बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. सो ऑल दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन. तो इन चीजों पे फोकस किया, और जब इन चीजों पे फोकस किया तो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, इस साइकिल से बाहर आने के लिए केरला ने वर्क किया. डिस्पाइट लो पर कैपिटल इनकम, अगर पर कैपिटल इनकम देखेंगे केरला में हर इंसान की इनकम वो लो ही है, ज्यादा हाई नहीं है. बट डिस्पाइट लो पर कैपिटल इनकम्स एंड रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेस, वहां पे इंडस्ट्रीज भी इतनी ज्यादा नहीं है. केरल स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. केरला अचीव नियरली टोटल लिटरेसी लॉन्ग लाइफ राइट. तो उन्होंने इसके बाद भी, उनकी जो पर कैपिटल इनकम है कम है, वहां पे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है केरला स्टेट के अंदर, उसके बाद भी उन्होंने इन पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है. एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, पॉवर्टी को हटाने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स में. उसकी वजह से उन्होंने क्या अचीव किया कुछ सालों में, देखिए. केरला अचीव नियरली टोटल लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है अदिति? अदिति व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट? सिया? ठीक है, रेट ऑफ एजुकेटेड हु नोस टू राइट एंड रीड एंड राइट. सिट डाउन. अदिति यही नहीं पता क्लास 12 में? वेरी बैड. ठीक है, तो लिटरेसी रेट बढ़ गया. लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ गई होगी अंबिका? केरल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों इंक्रीज हो गई होगी? एजुकेशन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी या हेल्थ फैसिलिटी से बढ़ेगी? गुड हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई. ठीक है. लो इन्फेंट फीमेल मोर्टेलिटी, लो बर्थ रेट्स, हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर, ये सारी चीजों में हम अलग अलग सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट देख लेंगे. सिट डाउन, खुद बैठ जाया करो, डोंट कीप स्टैंडिंग.
So between अब 2 years दिए हुए हैं हमें between 1987 and 1991. तो ये किसके क्लोज आ गया 1991 देखो 92 के पास 1991 इसके पास आ गया ना, तभी यहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था. इट वाज रिक्वायर्ड, देखा गया कि जरूर अगर सेंटर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता. अगर हमें डेवलपमेंट करना तो क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. तभी 92 में हुआ था. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन 1987 and 1991 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द न्यू democratic initiatives which involved campaigns for development including total literacy, especially in science and environment, designs to involve people directly in development activities through voluntary citizens organizations. The state has taken initiatives to involve people in making plans at panchayat. अब ये बताने का अलग-अलग initiative awareness programs चलने लगे लोगों के लिए, ताकि प्लानिंग में वो लोग भी इनिशिएटिव ले. और फाइनली क्या है, लास्ट लाइन में देखिए स्टेट ने क्या इंप्लीमेंट हुआ है, पीपल इन मेकिंग प्लान्स एट पंचायत लेवल पे सब प्लान करने लगे, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. यही होता है मॉडल. इफ यू टॉक अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सबसे ऊपर कौन सा होता है, जिला पंचायत, बीच में क्या होता है, ब्लॉक, जिला पंचायत एंड ग्राम पंचायत. ये लेवल कहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया, इंडिया में सारे स्टेट्स में इक्वली यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए. किस अमेंडमेंट से, 1992 के अमेंडमेंट से. ठीक है, ये वाला प्लान इसीलिए लाया गया था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग हो सके. ठीक है, नाउ ये थोड़ा सा एक था बॉक्स, उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ा. नाउ वी विल टेक द पार्ट ऑफ की कंट्रोवर्सीज. बैक टू दिस टॉपिक, की कंट्रोवर्सीज, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री. क्या कंट्रोवर्सीज थी, और याद रखना कंट्रोवर्सीज किसके बाद, जब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की. 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसके बाद क्या कंट्रोवर्सीज अरोज होती है हमारी सोसाइटी में लोगों के बीच. बिकॉज कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके कुछ कंट्रोवर्सीज भी होंगे, सपोर्टर्स भी होंगे और उसके क्रिटिक्स भी होंगे. क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों ही होते हैं हर चीज के. तो ये 5 ईयर प्लान के कुछ क्रिटिक्स भी थे, कुछ सपोर्टर्स भी थे, बट पर्टिकुलरली अबाउट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जो डिफरेंशिएट कर रहे थे, प्लस पब्लिक और प्राइवेट. तो हम पहला देखते हैं एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री. So key controversies, the strategy of development followed in the early years raised several important questions. Let us examine 2 of these disputes that continues to be relevant. There are many issues, but basically they have made into 2 broad categories, agriculture or industries and private versus public. तो हम ये 2 issues का पहला issue देखते हैं, क्या agriculture versus industry. We have already touched upon a big question between agriculture and industry, which one should attract more public resources in a backward economy like that of India. Previously also before talking about the planning commission हम बात कर चुके थे कि किसके पास एसेस होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को रन करना चाहिए हमारे ये डेवलपमेंट प्लान्स को, या गवर्नमेंट को एक की रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की. तो हम किस एक कॉमन उस पे आए थे पॉइंट पे कि किसका रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल. आफ्टर डिस्कशन हमने इधर उधर के एग्जांपल्स देखे वर्ड के, एंड वी केम टू अ कंक्लूजन दैट गवर्नमेंट शुड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल व्हेनेवर वी टॉक ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. वी कैन नॉट लीव दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट और इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर्स, इंडस्ट्रीज या फार्मर्स के हाथ में हम नहीं छोड़ सकते. गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा. तो ये पहला क्वेश्चन आ चुका था ऑलरेडी. Many thought that second plan lagged an agrarian. अब देखो बहुतों को लगता है, many thought that the second plan lagged an agrarian strategy for development and emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer. ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया गया इन द सेकंड 5 ईयर प्लान. इसकी वजह से जो रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर है उसने क्या किया, बहुत ज्यादा सफर किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इनटू द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द सेकंड 5 ईयर प्लान. और फर्स्ट ईयर प्लान पे हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, पर सेकंड तक आते आते हमने उसको क्या करना शुरू कर दिया, इग्नोर. तो उसकी वजह से जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, फार्मर्स हैं, और जो एग्रीकल्चर से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड है, दे हैड सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग दीस 5 इयर्स. ठीक है, मतलब आफ्टर 1956. गांधीयन इकोनॉमिस्ट, तो एक थे गांधीयन, जहां भी वर्ड आता है ना गांधीयन किसी के साथ थी, इट मींस this person also had the same ideology of Gandhi. In fact, he followed the ideology of Mahatma Gandhi. हर तरीके की आइडियोलॉजी गांधी के जो भी विचार थे. ठीक है, तो ये जो थे देखिए गांधीयन इकोनॉमिस्ट, वैसे प्रोफेशनल ही वाज एन इकोनॉमिस्ट. नाम क्या है, जेसी कुमारप्पा. जेसी कुमारप्पा. और जिनके बारे में बताता हूं, प्रीवियस में बॉक्स दिए हुए थे, एट योर ओन लेवल आप इसको पढ़ सकते हो. उनकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस आल्सो. मैंने पहले अगर पढ़ाया नहीं तो इट डजंट मीन यू विल नॉट रीड, क्योंकि उसमें कुछ समझाने का नहीं है, उसमें आपको याद करना है कौन थे.
पीछे भी कुछ आए थे ऐसे ही इंपॉर्टेंट पीपल, उनका भी ऐसे बॉक्स बना हुआ होता है, उसको गो थ्रू विद दैट। तो ये जो गांधीयन थे जेसी कुमारप्पा proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization। अब जो ये थे इन्होंने क्या बोला, हमको ज्यादा हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा किस पे था, एग्रीकल्चर। इन द सेकंड 5 ईयर प्लान ही सेज कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी इंडस्ट्रीज पे नहीं जाना चाहिए था, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें ग्रो करना चाहिए था, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, हमें हैवी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं जाना चाहिए था। मेगा डैम प्रोजेक्ट्स तो हमने किए थे, वो एग्रीकल्चर के लिए किए थे, बट उसके बाद हमें बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए था, उसके बाद हम बड़ी इंडस्ट्रीज में आ सकते थे। ठीक है, तो पता होना चाहिए किसने क्या बोला। तो जेसी कुमारप्पा प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट, ये सब हुआ नहीं है, ये सब इनकी व्यूज है जो अब हम कंट्रोवर्सीज में पढ़ रहे हैं। कंट्रोवर्सीज में बोलेंगे ऐसा होना चाहिए था, नो नो उन्होंने वो गलत किया, ये सही हुआ, एग्रीकल्चर को ज्यादा सपोर्ट किया, और इंडस्ट्री वाले बोलेंगे एग्रीकल्चर को फर्स्ट वाले में सारे प्लान सारे बेनिफिट्स मिले थे, तो आप अपने आप को ग्रो क्यों नहीं कर पाए। तो दिस ऑल हम यहाँ पे देखेंगे। जेसी कुमारप्पा प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट एंड पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि रूरल एरियाज में ही पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, अर्बन एरियाज में नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला था, बायस हो गया था इन द सेकंड 5 ईयर। कल मैंने बोला था क्या हो गया था यहाँ पर, अर्बन बायस। इट मींस सारा मेजर फोकस कहां पे चला गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा था बट वो अर्बनाइजेशन कहां पर हो रहा था, ओनली इन द सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा था बट कहां, अर्बन एरियाज में। तो अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन ही हो रहा था, रूरल एरियाज को इग्नोर कर दिया था। बट इनका जो थे जेसी कुमारप्पा, इनका कहना था कि वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, कहां पर होना चाहिए था, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हो सकता है, कौन सी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे हम, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज पर ही। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो ये थे इनकी व्यूज थी, ये दूसरे देखिए कौन है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक कांग्रेस के लीडर थे। जब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, ही वाज एन प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी। वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं बाद में, एंड ही मेक्स द पार्टी, और दैट इज भारतीय लोक दल। ठीक है, forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of प्लानिंग ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला एग्रीकल्चर को हमेशा सेंटर रहना चाहिए, जब प्लानिंग की डेवलपमेंट की बात हुई तो सबसे सेंटर पे क्या रहना चाहिए, एग्रीकल्चर। रीजन बीइंग द 80% एंड द मोर देन 80% ऑफ द पीपल वर लिव्ड इन द रूरल एरियाज एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे वर कनेक्टेड और बिजी विद द प्राइमरी एक्टिविटीज दैट इज एग्रीकल्चर। इसका रीजन है कि जब भी हमारी डेवलपमेंट और प्लानिंग की हम बात करें, चाहे वो कोई सा भी 5 ईयर प्लान हो, उसमें कुछ सेंट्रल स्पेस हमको किसको देना चाहिए, एग्रीकल्चर को देना है। हाँ, उसके बाहर हम दूसरी चीजों की बात कर सकते हैं, बट सेंट्रल पोजीशन शुड ऑलवेज बी गिवन टू द एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू हिम, चौधरी चरण सिंह। He said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of, ये भी बोल रहे हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान में आप डेवलपमेंट कर रहे थे अर्बन एरियाज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो किसको टारगेट करते हुए कर रहे थे, मतलब किसका उसमें नुकसान हो रहा था, रूरल एरियाज का। ठीक है, एक्सपेंस जो वर्ड है कि हम वहां तो कर रहे हैं खर्चा, प्रोस्पेरिटी ला रहे हैं अर्बन एरियाज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन एरिया का, बट किसके बेस पे, किसको टारगेट बना के ला रहे हैं हम, फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि इनको इग्नोर किया जा रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान में। अदर स्टॉक, तो ये 2-3 व्यूज आ गई हमारे पास। इफ विल से एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे हम कैसे व्यूज देख रहे हैं, इन सपोर्ट। अभी तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, बट अंडर दिस आल्सो अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, जो किसको सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी व्यूज आई हैं अभी तक। अब हम देखेंगे किसकी व्यूज आएंगे थोड़ी देर में, जो इंडस्ट्री से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, so other thought that without a drastic increase in industrial production there could be no escape from the cycle of poverty। so the other section of the society जो किसको सपोर्ट करता था, इंडस्ट्री, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान को सपोर्ट कर रहा था। अब उनकी स्टेटमेंट्स आएंगी, दे आर सेइंग ये जो साइकिल है ना पॉवर्टी की, इससे हम बाहर कभी आ नहीं सकते थे अगर हम टोटल किस पे डिपेंडेंट रहते, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते। अगर हमें इस पॉवर्टी की साइकिल को ब्रेक करना है और हमें इससे बाहर आना है, तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ठीक है, तो ये पहला इनका कमेंट आया है, दो सपोर्टिंग इंडस्ट्री। तो समझना पड़ेगा आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर उसके सपोर्टर्स भी है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। There could be no escape from the cycle of poverty. They argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grains। अब ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि इनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिली थी ना इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करने का, एग्रीकल्चर लेवल पे डेवलपमेंट करने का, अपने रूरल एरियाज का। बट स्टेट मेड लॉज फॉर द लैंड रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ लॉज भी लाए थे, किस चीज के लिए, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लैंड सीलिंग बोलते हैं एक चीज, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर, जितने भी रिसोर्सेज थे इक्वली बांटे भी पुअर्स के बीच में इन द विलेजेस। इट आल्सो प्रपोज्ड
प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट? अराउंड 1952. इससे पहले क्या हुआ था? 1952 में 1992 में हमने बात की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बट विलेज में ही एक लोकल गवर्नमेंट है, उसको क्या बोला था 1952 में हमने? कम्युनिटी डेवलपमेंट. जब आप अगर 11th की बुक आपने पढ़ी होगी तो जब इसका हम देखते हैं एवोल्यूशन कैसे लोकल गवर्नमेंट्स बनी, तो 1952 में नेहरू ने एक प्लान सपोज किया था एंड 1952 के अकॉर्डिंग हर विलेजेस में क्या बनी थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसके अकॉर्डिंग लोकल डेवलपमेंट हुआ करता था. ठीक है. इट ऑल्सो प्रपोज प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. इट मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है. It also proposed programs of community development and spent large sum of irrigation projects. Irrigation projects में कितना पैसा खर्च किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? मेकिंग ऑफ डैम्स एंड अदर थिंग्स. The failure was not. तो यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं ना इंडस्ट्री को, ये उनकी स्टेटमेंट्स है सारी. वो बोल रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तुमको गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स करके दिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करके दिए, जो भी रिसोर्सेज थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट के लोगों के बीच में, मेगा डैम प्रोजेक्ट्स बने आप लोगों के लिए, इरिगेशन की नई नई फैसिलिटीज आई. मतलब एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए जितना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कर सकती थी किया, बट आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया. ठीक है. तभी दिखा देखिए द फेलियर वाज नॉट दैट ऑफ द पॉलिसी. पॉलिसी का फेलियर नहीं था. गवर्नमेंट हैड सो मेनी पॉलिसीज फॉर यू जो इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी विलेज लेवल पे, रूरल एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट इट्स नॉन इंप्लीमेंटेशन. पॉलिसीज आई ऑन पेपर, बहुत सारी पॉलिसीज थी जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट 5 ईयर में, बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी, बट दोस पॉलिसीज वर नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. हम बोलते हैं ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था एज कंपेयर टू द सेकंड 5 ईयर प्लान, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा. तो उसका रीजन क्या हुआ? यहाँ पे पॉलिसीज तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा आइडिया बनाया था. वी हैड टेकन सम एग्जांपल्स फॉर यूएस आइडियोलॉजी, सम एग्जांपल्स फ्रॉम यूएसएसआर आइडियोलॉजी, और हमने अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिक्स्ड इकोनॉमी हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिसको हमें इंप्लीमेंट करना था, बट इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट डन अप टू द मार्क. इंप्लीमेंट नहीं किया. हम बातें करने बड़ी बड़ी, प्लान अच्छा बन गया, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस पे नहीं ला पाए अगर, तो उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है. तभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमने पॉलिसीज बनाई उसको हम क्या नहीं कर पाए? इंप्लीमेंट नहीं कर पाए. ये कौन बोल रहे हैं? इंडस्ट्रीज बोल रही है, एग्रीकल्चर हो कि स्टेट ने आपके लिए सब कुछ किया गवर्नमेंट ने, बट आप अपने लेवल पे उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए. बिकॉज क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाए? बिकॉज जो रूरल इंडिया अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज डोमिनेटेड बाय लैंड ओनिंग क्लासेस, लैंडलॉर्ड्स, जमींदारी सिस्टम. ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हुआ करते थे विलेज के. जमीन हिस्ट्री में पढ़ते हुए आए होंगे ना आप लोग जूनियर क्लासेस में भी, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे. ये लोग अमीर लोग होते थे, लोन इन्हीं से लेते थे, और जब लोन पे नहीं कर पाते थे तो गरीब लोगों का लैंड भी ये लोग बचा हुआ ले लेते थे. तो इनका डोमिनेंस रूरल एरिया में बहुत ज्यादा था. और जो पॉलिसीज इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आई थी, हम किसकी बात कर रही थी? गवर्नमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को चाहेगा उनका लैंड चले जाए, उनको कॉमन इंसान की तरह देखने लगे, उनका जितना एक्स्ट्रा लैंड है वो लैंडलेस लेबर के बीच में बट जाए. तो ये जो लैंड ओनिंग क्लासेस थी ये नहीं चाहते थे किसको इंपॉर्टेंस मिले? लैंडलेस लेबर्स को अपना लैंड मिले और हमारा लैंड गवर्नमेंट ले ले. तो उन्होंने इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट होने ही नहीं दिया. एग्रीकल्चर वाली जो पॉलिसीज आई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हुई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई है, पर जितना इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए था, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, वो यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे विलेज एरिया में. अभी हम समझ नहीं पाएंगे उनकी पावर कितनी थी. इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल थे, पॉलिटिकली भी वो बहुत पावरफुल थे. विलेजेस में, रूरल एरियाज में जो भी गवर्नेंस चलता था, डोमिनेंस चलता था, वो किसका चलता था? लैंड ओनिंग क्लासेस का, जमींदार का, जिनका जमीन का पूरा, पुरानी मूवीज देखते हैं ना ठाकुर साहब, उस टाइप का पूरा कंट्रोल उन्हीं का रहता था. ठीक है. इस वजह से जब वो बता रहे हैं इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया. तो लैंड ओनिंग क्लासेस एक रीजन है उसका. हैड अ लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पावर बहुत थी लोगों की. Besides they also argue, आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इस पे ये आएगा नोट, तो आप उसमें ये सब मत मेंशन करना. ये किसमें आएगा? जब हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज की. यहाँ पे हम एग्जैक्टली लिखना जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की थी वो इंप्लीमेंट करवाई, क्या क्या चेंजेस हुए, ग्रोथ स्लो हुआ, जो भी था, बट जब हम कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे तब आप ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे. Besides they also argue that even if the government had spent more money on agriculture, it would. अब ये क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्री वाले इनको सुना रहे हैं, बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा पैसा आप लोग के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया होता ना, रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम. जिस लेवल पे आज हो आप वही होते, क्योंकि वहां पे पॉलिसीज का कभी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं. एंड दैट एंटायर रूरल एरिया वाज डोमिनेटेड बाय पीपल ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस एंड जमींदार्स. और वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली बहुत पावरफुल थे. उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती थी वहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी. तो ये बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज अगर फर्स्ट या सेकंड 5 ईयर प्लान में भी आपके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करते, उसका आउटपुट वही होता जो आज है. ठीक है. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड. तो दोनों के आपको 3-3, 4-4 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आपकी कंट्रोवर्सीज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री.
So now let's talk about public and private के बीच में क्या क्या differences थे. Public versus private sector. India did not follow any of the two known. I think time over हो जाएगा.